सभासदों, माननीय सभापति जी, Question 221. Zero hour, please. Please take it up 0 hour and don't show any newspapers. No newspapers, please. No newspapers. 0 hour. Please take it up at no newspapers. We all read newspapers. You don't have to educate us there. 0 hour, please. Take it up at 0 hour. बैठ जाइए. No, we'll take it up at 0 hour. That's all. बैठ जाइए. भैया बैठ जाइए. भैया ये 0 आवर में आप लीजिए या किसी और वक्त लीजिए. भैया Mention of that in the 0 hour. ऑल राइट. ओके, ठीक है. अच्छा आप बैठ जाइए. क्वेश्चन 221 बैठ जाइए प्लीज. सप्लीमेंट्रीज प्लीज. बैठ जाइए. अरे ये क्या कर रहे हैं भैया? बैठ जाइए. हमने कहा था कि आप क्वेश्चन 221. बैठ जाइए प्लीज. भाई क्वेश्चन आर चलने दीजिए. बैठ जाइए प्लीज. सप्लीमेंट्रीज प्लीज. भाई बैठ जाइए. कहाँ है ये? प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज. सर सप्लीमेंट्री. भाई बैठ जाइए प्लीज. राजीव जी प्लीज. We are discussing question 221. करना चाहिए. ये कोई तो Raise date. We will allow it in 0 hours. Please, thank you. बैठ जाइए. नरेश जी नहीं वो ऐसे मिनिस्टर शुड लिसन एट मी. नो मिनिस्टर शुड लिसन. भाई 0 आवर में उठाइए. नहीं ठीक है ना. हु वाज भाई मिनिस्टर हैज टू लिसन. ही हैज टू रिप्लाई. भैया बैठ जाइए ना. टेक इट अप एट 0 आवर. Please announce that you will allow us to raise this in the 0 hour. All right, I've already said that. Fine. नहीं, बैठ जाइए. Question 221 supplementary पूछिए. Sir, one among the objectives of establishing special economic zone was to create employment opportunity. In this regard, I would like to ask if many special economic zones are still not started, how the government is going to fulfill the promise of creating employment opportunity. Apart from this, wait, One sir. question. Let me complete. No. Let me complete, sir. Same question. Apart from this, whether government is having any plan to give employment opportunity SCs and STs. Sir, as regards setting up and activating and operationalizing SEZs, several factors determine it. It's a long-term process, and the time for completion of every project actually depends on several issues. Of late, of course, we know the reasons for not being able to operationalize any particular SEZ
is because of the various factors which are like fiscal incentive regimes or change in the fiscal incentive regimes or the global recession or situations arising out of different difficulty in achieving contiguity in land which has been acquired and so on. So there are several reasons why operationalizing SEZs are dependent and also dependent on being dependent on several factors. They take their time, but the facts are now fairly sort of in front of us, and situation is easing. There are several conditions which are improving, and as a result of which we think SEZs may probably now attract greater investor interest, and as a result of which I think employment generation should also pick up. दूसरा प्रश्न. No, answer is not complete. What about No, please. If the answer is not complete, there is a different procedure for it. Okay. Ask your second supplementary. As many special economic zones are non-starter, whether government took any steps to take back of the land allotted to special economic zones. If lands are taken back, they can be utilized for any other purpose, including agriculture. In this regard, what is the stand of the government? So when a SEZ is cancelled or when it is denotified, several procedures are adopted before an NOC or a no objection certificate is issued. One such a thing relates to land which comes under the state government's purview, where of course the state governments will go through the terms of reference and also the conditionalities with which the land was given, and reviewing that they take action at the state level, and when it comes to the other factors, the no objection certificate is issued only at the time of denotification. It is issued only after making sure that the conditionalities and amounts which are due to the authorities are retrieved, and only then the NOC is issued. So particular reference to the land, the state governments also do their due diligence on it and ensure that whatever is due to the state is taken, and then only is the no objection certificate issued. Shri Jairam Ramesh. New land acquisition law in 2013, and SEZs were brought under this law. Sir, my question relates to the SEZs that came prior to the passage of this law. I've heard the answer that the Honorable Minister has given to the previous questioner. There are 398 non-functioning SEZs with a total area in excess of 9,000 hectares. I take the point that the states ultimately decide what will happen to the unutilized land. I would like to ask the Honorable Minister whether she would consider issuing an advisory to all the state governments on what the best practice for the utilization of the land that was taken over by SEZs which have become non-functional. Well, the input by the Honorable Member Mr. Jairam Ramesh is certainly very valid, and I will certainly look into it and see what best we can do on that. Shri Naresh Agarwal. माननीय मंत्री जी, आप जानती हैं कि देश में भूमि की कमी है, और जो उर्वरक भूमि है जो इससे हम फसल पाए तो माइक में बोलिए. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, देश में SEZ एरिया जिस इलाके में खुल रहे हैं उस इलाके की वो जमीन जा रही जो जमीन जोत के काबिल है, और देश में तमाम ऐसी जमीन पड़ी है जो उपजाऊ नहीं है, ऊसर बंजर जिसको हम कहते हैं. तो एक तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या मंत्री जी SEZ एरिया खोलने के लिए आपने जो मानक बनाए हैं, जो गाइडलाइन आपने बनाई हैं, उस गाइडलाइन में क्या ये नेसेसरी करेंगी कि फ्यूचर में जो भी SEZ एरिया खुलेंगे वो उन इलाकों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन इलाकों में ऊसर भूमि उपलब्ध है, जिससे उपजाऊ भूमि कम ना हो. नंबर 2, उसी में साथ ही साथ दो नहीं करेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सब नोएडा में आपने SEZ जितने दिखाए हैं सब उत्तर प्रदेश में नोएडा में, सिर्फ एक है लखनऊ गंजेरिया, बाकी सब नोएडा में. तो क्या उत्तर प्रदेश खाली नोएडा में तो है नहीं, 1000 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश है. तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने कहाँ SEZ खोलने के लिए मांग करी, या और लोगों ने कहाँ SEZ मांग करी है,
या बताएंगे उनमें कितने स्वीकृत करने आप जा रहे हैं? The honorable members raised in specific about SEZs in Uttar Pradesh and particularly referring to SEZs which are in non-Noida areas, in the sense referring to Banjar lands which are non-agricultural lands or wastelands which can be usefully not utilized in agriculture. I will have to certainly look into this because I wouldn't at this stage be able to tell you whether priority in determining whether the SEZs had to be only in Noida or not utilize Banjar lands was a condition at all, because I don't think SEZs, as far as I understand here, have gone in. I have not completed my answer, sir. I have not completed my answer, sir. Would you allow me? नरेश जी प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, उनको दुर्भाग्य जवाब पूरा करने दीजिए। नहीं, हमने पूछा नहीं है, उनका जवाब हमने ये किया है कि उनकी क्या गाइडलाइन में फ्यूचर में उस एरिया को एसईजेड की प्राथमिकता देंगे जहां पर अनकल्टिवेटेड लैंड है। ठीक, वो उस क्षेत्र को अपनी उस पर प्राथमिकता देंगे। That is for the future. सर, एरिया में Can I please answer completely, and after which I will certainly be glad to answer the questions of additional, which comes out of my answer. I'm certainly trying to underline the fact that SEZs are taken up after the proposals are received from state governments. Whilst the suggestion being given by the honorable member is very valid and it may be of use for future, at the moment, the honorable member, I'm sure, is seized of how proposals come from state governments, and lands that are chosen for SEZs are essentially decided, therefore, by the state-driven proposal. And therefore, the answer for current proposals being located wherever they are located is essentially because of the choice made by the states. And for future, the suggestion that the honorable member is giving, will certainly be glad to consider. Shri A.U. Singh Dev, please. Left over from this list. Thank you, Honorable Chairman, sir. It is in China where SEZs have been a universal success because of the size and infrastructure created for companies which locate themselves in SEZs. Such companies achieve global competitiveness due to economies of scale. Where in India, SEZs have been nomenclatured without adequate size of land or surrounding infrastructure, thus achieving no benefit apart from tax incentives for exports. Will the government reconcile the SEZ guidelines to ensure that any SEZ created in India provides for adequate size of land and infrastructure, thereby creating economies of scale and ensuring that India companies become globally competitive? Sir, as regards the size of the land being an issue as in the determination of the SEZ rules, I think quite a lot of discussions have taken place. Sometimes we found that the largeness of the requirement itself is a deterrent in forming an SEZ, and some other times we found that absence of contiguous availability of land became an issue in establishing an SEZ. Land availability is certainly an issue, and sometimes, of course, you would have seen that we have probably reduced the requirement of land in some cases. So that is a serious issue on which the reviews which are taking place of SEZs are seized of the issue of land availability, and that is certainly a thing for future so that SEZs do not suffer because of strict availability of size of land becomes an issue. Question 222. No, I know that. Only 3 supplementaries can be taken. You can't agitate like this. We are not giving opportunity. She is saying that Banjar land. भाई आप agricultural land also, assigned land also. ये आप क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं सर? भाई 3 से ज्यादा supplementaries. उसको भी आप चांस नहीं देते. गरीबों का जमीन ले लेते. आंध्र प्रदेश का ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन देके Nothing of this is going on record. Question 222. 222.
सोशल इकोनॉमिक जोन होगा। किसका सवाल है? ओके, लेट द आंसर बी गिवन। सर, एक विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया। Sir, India is importing the crude oil from Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Iran, UAE, Qatar, Russia, Sudan, and so many countries. Sir, usually they have the practice to purchase this thing through the dollar, but there was an arrangement of barter system. In case of Iran, the government of India has already taken certain steps to introduce the barter system, because India is exporting rice and some other items to Iran. What is the government's intention to increase this barter system to avoid this dollar expenditure? Thank you. सभापति जी, ईरान के साथ हमारी जो ऑयल ट्रेडिंग की प्रैक्टिस है वो बैटर सिस्टम नहीं है, जिसको हमने उत्तर में दिया है। एक 2012 से एक अरेंजमेंट है, लगभग 45% पूरा सौदे की हम भारतीय मुद्रा में व्यय करते हैं, पेमेंट करते हैं, लेकिन उसको हम चाहेंगे विश्व भर में हमारी जो ऑयल ट्रेडिंग हो रहे, ऑयल परचेजिंग हो रहे क्रूड ऑयल की, उसको कूटनीतिक तरीके से हम कितने भी डॉलर के ऊपर निर्भरशीलता घटा सकते हैं, वो अच्छी बात होगी भारत की अर्थनीति में। लेकिन अभी ईरान के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, ईरान की व्यवस्था बैटर सिस्टम के अंदर नहीं आता है, लेकिन हम चाहेंगे वो आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न। हाँ सर, still India is importing the kerosene, liquefied petroleum gas products for the domestic use, and some export-oriented refineries began reorienting the production for domestic use of 2009 to help the ease shortage of motor gas oil, kerosene, LPG, etc. Sir, the minister has given the reply that every month they have given permission to OMC to increase 40 to 50 paisa price increase in diesel. So I would like to the minister, one, whether they are going to increase this import of all these items what still we are bringing from outside the country, or from the domestic market they like to manage this present situation, so that the 50 to 40 paisa increase of petroleum for diesel should not be increased. Thank you. सभापति जी, सदस्य ने 40 से 50 पैसा डीजल की जो हर एक महीने में पिछले 18 महीने से बढ़ रही है, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। अभी जो हमारी व्यवस्था है, हम कोई फिनिश प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बाहर से नहीं लाते हैं। अपने देश की रिफाइनरी, पीएसयूज के और जो कुछ निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है, वो सक्षम है अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन ये मूल विषय सभापति जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें हम लोगों को बीच बीच में, जैसे अभी इराक की संकट आई, हम ना चाहते हुए भी कुछ विषयों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को ध्यान को रखते हुए, यद्यपि हमारे ऊपर बोझा और आता, लेकिन सरकार ने देश की अर्थनीति को संतुलित रखने के लिए एक कदम उठाना पड़ा था। इस प्रैक्टिस को कितना कम बोझिला करे, इसकी कोशिश सरकार कर रही है। थैंक यू। श्री मुख्तार अब्बास नकवी। माननीय सभापति महोदय, लगभग 70% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है हम उन देशों से लेते हैं जिन देशों में कि बहुत उथल पुथल है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इराक में
जो कुछ हो रहा है या अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है जिसके जहां से कि हम क्रूड ऑयल लेते हैं, उसका प्रभाव आने वाले दिनों में देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के खुदरा दामों पर पड़ेगा क्या, और अगर पड़ेगा तो उसके रोकथाम के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? थैंक यू। सभापति जी, सदस्य ने एक सही दिशा में वो प्रश्न पूछा है। आज भी हमारी निर्भरशीलता लगभग 61% ये हमारे जो खाड़ी की देश है उसके ऊपर है, लेकिन हमारी देश की व्यवसाय धीरे धीरे अफ्रीकियों देशों से बढ़ रही है। हमारी साउथ अमेरिका के साथ ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देशों में हमारे संबंध के माध्यम से हम अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। यूरेशिया एक ऐसे इलाका है जिसमें हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन कुछ कूटनीतिक दिक्कतें भी हैं। उसमें विदेश मंत्रालय अपना कोशिश जारी रखा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुधारने में भारत को भी उसमें कुछ फायदा मिल सकती है। ये सारा विषय हम विश्व बाजार में एक जगह पे हमारी निर्भरशीलता ना रहे, विश्व भर में हम अपने रिश्ता बढ़ाते हुए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हम और सिक्योर करें, हमारे नेटवर्क को हम और सिक्योर करें, उसकी कोशिश करें। लेकिन इसके बावजूद मैं पहले भी कहा, ये सारा विषय के बाद भी भारत अपने देश में गरीबों के ऊपर कम बोझ आए उसकी कोशिश कर रही है। थैंक यू। श्री राजीव शुक्ला। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने बताया कि ईरान के साथ 45% रुपीस में और 55% डॉलर के हिसाब से हम तेल लेते हैं, लेकिन जो ईरान के साथ हमारा करार है, क्या हम पूरी क्षमता भर आयात कर रहे हैं? अगर हमारा डॉलर बच रहा, विदेशी मुद्रा बच रही, तो क्या पूरी क्षमता भर जिसके लिए हमारा करार है हम पूरा आयात कर रहे हैं? और उनका सारा पैसा जो है यूको बैंक में जमा रूपी वाला, उसके लिए वो चाह रहे हैं कि वो पैसे को रिलीज करने के लिए, ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें बार्टर के लिए, दूसरे सामानों के ले जाने के लिए। उस मामले में उन्होंने क्या वित्त मंत्रालय से संपर्क करके उस तरह की अनुमति दी ताकि ये करार लगातार चलता रहे और हमें अच्छा और सस्ता तेल मिलता रहे? सभापति जी, ये एक विषय, इसकी मूल व्यवसाय हम करते हैं, लेकिन उसकी जो कूटनीतिक पक्ष है, हम इस विषय में हम मर्यादा के साथ विषय को कहना चाहते हैं। हमारे विदेश विभाग उस विषय पे उसके ज्ञान में है, उसमें दृष्टि भी रखा है। जो हमारी सारा विषय की जो कूटनीतिक उत्तरदायित्व है, उसके अंदर हम जो करना आवश्यक है हम कर रहे हैं। इतना का करार हुआ है, कर रहे हैं, लगभग कर रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ $12 बिलियन ऐसा कुछ हो रहा, पूरा नहीं हो रहा बैरल। आप पता लगा बाद में बता दीजिएगा प्लीज। नहीं, जो बाद में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊं। ठीक है। श्री प्रेमचंद गुप्ता। आज नहीं जाऊंगा। जी सर, जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो गल्फ की ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वहाँ पर जो डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उससे आप अपनी निर्भरता अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर में अब ज़्यादा डाल रहे हैं। लेकिन अफ्रीका में कहाँ पीस है? सारा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो अफ्रीका में है, वेदर नाइजीरिया है या मोजाम्बिक है, साउथ सूडान है, लीबिया है, इनमें सब में डिस्टर्बेंस है। तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? व्हाई डोंट यू पुश द डोमेस्टिक प्रोडक्शन? In that case, you will not have any outgo foreign exchange, and neither there would be a burden of heavy cost on our exchequer. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? सभापति जी, मैं सैद्धांतिक तरीके से जो माननीय सदस्य ने जो विषय उठाए, मैं सहमत हूं। ये चिंताजनक विषय है। पिछले 3 आर्थिक वर्ष में जो निजी उत्पादन होनी चाहिए था, जो हमारी फ्लैगशिप कंपनी है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, दोनों की उत्पादन घट रही थी। नई सरकार आने के बाद जोर दिया है, हम प्रत्येक मासिक मॉनिटरिंग शुरू किए हैं, निजी उत्पादन बढ़े। निजी उत्पादन बढ़ना ये जो निर्भरशीलता एक का उत्तर हो सकता है, मैं सहमत हूं। उसमें हम काम शुरू किए हैं और हमको विश्वास है हम इस आर्थिक वर्ष में जो नेगेटिव ट्रेंड पिछले 3 साल में कुप्रबंधन के कारण बनी थी, उसको हम सुधारेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन 223।
माननीय सभापति जी, पृष्ठ संख्या 223 का विवरण पटल पर रख दिया है। Supplementary, please. So when it comes to women's vocational courses, when I was looking at the website, I saw that the basic courses are mainly dressmaking, hair and skin care, preservation of fruits and vegetables, fashion technology, catering. I mean, most of the courses are connected to beautician training, childcare, textile related training. According to statistics which have studied and have made surveys of what happens to women who come out of these vocational training courses, they found that there's a big disconnect between the market needs and what they train to become. Over 56% of women as against 20% of men are unemployed. So will the government look at other courses, I mean move away from whatever has been taught as allotted to women and this is what they can learn and study? Will they look at more modern things and courses which actually will benefit them in finding jobs? माननीय सभापति महोदय, हमारी सदस्य बहन ने बहुत अच्छी बात कही है। यह सच है कि रोजगार की दृष्टि से और काम की दृष्टि से महिलाओं का प्रतिशत घट रहा है। यह हम सब लोगों की चिंता का विषय है और सरकार के संज्ञान में है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं, लेकिन और भी इसकी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग विषयों की दृष्टि से और ध्यान केंद्रित करेंगे और महिला उद्यमी तैयार हों और आगे बढ़ सकें। Please, please, please. Let the answer be finished. Let the answer be finished. बैठ जाइए प्लीज। नहीं, बैठ जाइए प्लीज। ज्यादा काम कर रही है क्या काम? प्लीज ज्यादा काम कर रही है थोड़ी का? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बहनों की संख्या काम की दृष्टि से कम हो रही है। यह सरकार की चिंता का विषय है। यह बढ़े, इस दृष्टि से सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। IBPI के माध्यम से जो प्रशिक्षण योजना देश में चल रही है उसके भी परिणाम ठीक आ रहे हैं और आगे भी वो बढ़े, इस दृष्टि से IBPI आगे और खोलने का प्रावधान किया गया है, जिस पर काम चल रहा है। सरकार महिलाओं को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से पूरी तरह चिंतित है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। Actually, I'd like little more detailed reply for my first supplementary, sir, because I want to know what if they are planning to bring in more courses other than what is already there. And my second supplementary, in the courses, it's on stenography and secretarial practice. Stenography is in Hindi and secretarial practice is in English, and the advanced course secretarial practice again is Hindi and English alone. So in states like Tamil Nadu and other regional states where regional languages are spoken, Hindi and English can alone not help the women to find a better job market. Will regional languages also be taken into consideration and training given in those languages? माननीय सभापति जी, जो विषय अभी विद्यमान हैं उनमें मुख्य रूप से जो लोकप्रिय विषय हैं मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा। बाकी बहन चाहेंगी तो मैं सदस्य को पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगा। सूची मेरे पास है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, वाशफील्ड ड्राफ्टमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम सहायक, सचिवालय पद्धति, केस त्वचा देखभाल, ड्रेस बनाना, इनके एक तौर से डिमांड ज़्यादा है। और यह सच है कि तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में निश्चित रूप से भाषा की तकलीफ है। इस दृष्टि से जरूर हम विचार करेंगे। थैंक यू। The question is Tamil Nadu focused. Supplementaries on this can be asked. Yes, sir. Tamil Nadu focused supplementaries. No, 1 minute please. Shri Parvez Hashmi, Tamil Nadu focused.
आपके माध्यम से माननीय मंत्री सर, तमिलनाडु नहीं, उसमें 8 जो सेंटर है उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। सवाल पढ़िए सर, उसमें ये दिया है कि 8 नए सेंटर खुलने जा रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि वो कौन सी प्लेसेस हैं जहां 8 नए सेंटर खुलने जा रहे हैं, कब तक खुलेंगे, अब कब तक ऑपरेशनल होंगे। सर ये सेकंड, आप उसमें सेकंड पैरा देखिए सर, इन फर्स्ट पैरा ये सेड कि इज गोइंग टू ओपन, गवर्नमेंट इज गोइंग टू ओपन 8 न्यू आरबीटीआई। मेरा सवाल पढ़िए प्लीज, प्लीज रीड द क्वेश्चन, इट इज तमिलनाडु फोकस्ड। सर आंसर में दिया हुआ है कि 8 नए आरबीटीआई खोले जाएंगे, तो आई एम आस्किंग वेयर एंड व्हेन। ऑलराइट सर, पूछिए। माननीय सभापति जी, प्लीज स्टॉप एजिटेटिंग, क्वेश्चंस आर रोटेटेड अराउंड द हाउस। I don't like this attitude of everybody agitating. There is no way by which everybody can ask a supplementary on every question. जी चलिए, please go ahead. माननीय सभापति जी, 28 फरवरी 2014 को नए 8 आरबीटीआईज खोलने का निर्णय हुआ है और उनमें एक तमिलनाडु में है, एक पंजाब में है, एक हिमाचल प्रदेश में, एक त्रिपुरा में, एक बिहार में, एक गोवा में, एक उत्तराखंड में और एक जम्मू कश्मीर में। ये 2017 तक कार्यशील हो जाएं, सामान्यतः यह लक्ष्य है और जिन स्थानों का अनुमोदन किया गया है उन पर भूमि इत्यादि ली जावे, उसकी प्रक्रिया राज्य शासन के साथ चल रही है। श्री अनिल देसाई। My question, in fact, it is more of a suggestive nature, because regional vocational training institutes, those which are coming up, and Kanimoi, what she asked for from the minister, I would like to inform the minister through you that there was a better vocational training which was imparted in the state of Maharashtra through CBSE institutes in the field of general insurance, life insurance and actuarial science. Unfortunately that has been discontinued, but if you happen to see the outcome of those courses, lot of generation which was created, and that really helped the middle class students. And if minister tries to inculcate, or if he tries to imbibe it, give more impetus to this kind of courses, that would really help the regional vocational training institute which are coming up in 8 centers in India. So this thing is, if minister through you, I would say that if he tries to put some light on this. Thank you. माननीय सभापति महोदय, वोकेशनल ट्रेनिंग के अनेक कार्यक्रम अनेक विभागों द्वारा संचालित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा है, शक्ति इस बात का परिचायक है कि देश में स्किल डेवलपमेंट हो, इस दृष्टि से तेजी से प्रयत्न किया जाए। श्रम और रोजगार विभाग की दृष्टि से चाहे महिलाओं की ट्रेनिंग का सवाल हो, चाहे अन्य छात्रों की ट्रेनिंग का सवाल हो, उनकी स्किल डेवलप्ड हो, वो कुशल बने, इस दृष्टि से सभी कोर्सों और पाठ्यक्रमों के बारे में विचार हुआ है। तब्दीली की आवश्यकता है, वहाँ तब्दीली भी करने का प्रयास किया है। सभी जगह से इनपुट मंगाए गए हैं और जितना सुधार किया जा सकता है वो करने का प्रयास सरकार कर रही है, जिससे कि ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़े और आगे आकर लोग काम में लगे। थैंक यू। वेरी गुड। श्री नचियप्पन। Actually, I would like to request the Honorable Minister to find out, there is a heavy demand is in Tamil Nadu for having the web-based usage in Tamil, and also large opportunities given for the employment. Therefore, I request that the ministry, whether they will take into consideration the Tamil-based web training will also be included as a syllabus, along with the stenography also. माननीय सभापति जी, मैंने पूर्व में ही कहा कि निश्चित रूप से तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह तकलीफ होगी और मैं सिद्धांत इससे सहमत हूँ, लेकिन इस दृष्टि से
विभाग में विचार किया जाएगा। Thank you. Question 224. Question 224. शुक्रिया सर। Thank you. Let the answer be given. Supplementary? जी. The statement is laid on table. Thank you. Supplementary पूछिए। सर, ये बिहार में जो कोसी आपदा आया था और इस पर पूरे देश की जनता जिस हिसाब से आहत हुई थी और उस समय के सरकार द्वारा जो पुनर्वास के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए नुकसान और तबाही के हिसाब से आज तक उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है, जिसको लेकर के आज भी वहां की जनता जो सहूलत हमको देनी चाहिए, हम वो सहूलतें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए कि सर बिहार सबसे कमजोर और बिहार सबसे निचली, आर्थिक एतबार से बहुत निचली सतह की रियासत। सवाल पूछिए। तो इस संदर्भ में हम माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाह रहे हैं कि आपदा से संबंधित जो इन्होंने जवाब हमको दिया है, वो उस जवाब से तो मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं, और जो उसके लिए स्पेशल एक पैकेज का सवाल था, हम उस पर जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय से खुद जाकर देख चुके हैं कि क्या उसके लिए कोई आगे का स्टेप है कि नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। थैंक यू। सभापति महोदय, 18 अगस्त 2008 को कोसी में बाढ़ आई थी, उसके कारण बहुत बड़ी तबाही हुई थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देते समय पूरा विवरण उस उत्तर में मैंने अपनी तरफ से दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस तबाही से उस क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने के लिए अधिकतम जितना भी धन मुहैया कराया जा सकता था उतना धन मुहैया कराया गया है। और मैं यह भी माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी सहायता प्राप्त हुई थी, जो अब तक खर्च हो जानी चाहिए थी, वह अभी राज्य सरकार के द्वारा वह धनराशि अभी तक खर्च नहीं की गई है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे और आपकी अनुमति होगी सभापति महोदय, तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा तैयार वर्ल्ड बैंक की एक योजना थी जिसकी कुल लागत लगभग 220 मिलियन अमेरिकन डॉलर थी, लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन यह पूरी धनराशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ से भी धनराशि जारी की गई है और वह जो धनराशि जारी की गई है वह 614.56 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड उसके द्वारा जो जारी की गई है 497.35 करोड़ रुपए, और इसके अतिरिक्त भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कभी कभी कुछ विशेष यदि धन मुहैया कराने की आवश्यकता होती है तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन यह जो है धन मुहैया कराते हैं। ये लगभग 117.21 करोड़ रुपया भी मुहैया कराया गया है। और वैसे बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने कि अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वह कोसी रिवर का फ्लड आने के बाद रोल प्ले किया है, चाहे वह हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, और साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, ड्रिंकिंग वाटर जो एक मिनिस्ट्री है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, और फूड एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, यानी बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज ने वहां की जनता को राहत दिलाने के लिए बहुत सारी धनराशि वहां पर मुहैया कराई है। दूसरा प्रश्न, इन संदर्भ में जो भी पैकेज दिया गया या जो भी राहत दी गई, सर तबाही के अनुसार से वहां बिल्कुल नहीं। करीब करीब जो 3 जिलों को जोड़ने वाले 2-3 पुल हैं, आज भी वो क्षतिग्रस्त है सर, और हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसको फिर हम नया बना सके। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जो हमारे सांसद हैं, इन सदस्यों के साथ एक समय दिया जाए और एक समय देकर के उस इलाके को पूरे ढंग से डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेशल पैकेज का व्यवस्था किया जाए। इसलिए सर आप अपने आंख से देख चुके हैं, जा चुके हैं सर, ये जो NH 30 से लेकर के
मधेपुरा होते हुए हम जो निकलते हैं सुपौल सहरसा, ये पूरी लाइन हमारी सर, जो रास्ते में बड़े बड़े पुल हैं, आज भी वो सारे पुल डैमेज हैं। और जब तक आपकी तरफ से कृपा नहीं होगी तब तक सर कोई हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और हम आपसे आशा रखते हैं कि इस पर माननीय सदन के माध्यम से हमें कुछ ठोस आश्वासन माननीय मंत्री महोदय देंगे। ठीक है। वैसे सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहूंगा कि 2008 में यह बाढ़ आई थी। उस समय जो धनराशि मुहैया कराई गई थी बाढ़ से राहत देने के लिए, उसके अतिरिक्त भी 2009 के बाद CRF सेंट्रल रिलीफ फंड के द्वारा भी 497 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई गई है। और साथ ही साथ NCCF के द्वारा भी 117 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री ने, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने भी अलग अलग धनराशि मुहैया कराई है। रूरल डेवलपमेंट ने वह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, वहां पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए हर गांव में जो धनराशि मुहैया कराई है वह लगभग 1732 करोड़ की है। और ड्रिंकिंग वाटर ने वहां पर पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जो धनराशि मुहैया कराई है वह अप्रॉक्सीमेटली 239 करोड़ है। श्री हुसैन दलवाई, सवाल बिहार फ्लड्स पे। यस जी पूछिए। थैंक यू सर। बिहार की सर स्थिति ऐसी है कि वहाँ एक तो सूखा होता है 40% जमीन पे, या तो बाढ़ होता है। तो सरकार की एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट है, इसमें ये बिहार का विचार किया जा रहा है क्या? ये ड्रिंकिंग वाटर के बारे में संभवतः इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। वैसे भारत सरकार सिद्धांततः पूरी तरह से सहमत है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर होना चाहिए। और इस बार राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण था, राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। यानी उससे हमारे भारत सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करना, आगे कैसे प्रोसीड करना, इसके संबंध में मैं समझता हूं कि जल्दी भारत सरकार अपनी कोई योजना तैयार करेगी। श्री डी राजा। Sir, the answer explains how funds have been given from different heads, from different schemes. My question is very specific, sir. After Kosi flood devastation, you as chairman of this August House has appealed to members of this house to contribute from their MP-led funds. In case of Leh Ladakh also you made this similar appeal. In case of Uttarakhand devastation also you made similar appeal, and many of us have contributed to the relief work. How these funds are utilized? What is the mechanism that Home Ministry has got to monitor how the funds given from members MP-led funds are spent? Thank you. Thank you. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस संबंध में जानकारी चाहिए है, मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी में उपलब्ध करा दूंगा। प्रोफेसर अनिल साहनी। मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी भी देना चाहता हूं, कभी बोले कि जो पैसा दिया गया वो खर्चा नहीं हुआ। खर्चा पर सुना जाए, खर्चा हुआ है, मगर जो पैसा आप दिए हैं उसके अनुसार मनमोहन सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी 1000 रुपया बोले थे, 1000 करोड़ देंगे, मगर दिए कितना? पूछिए इनसे भी। तो सवाल आता है, सवाल पूछिए ना। सवाल है सर, ये सवाल है। ये जो है सो, सुनिए एक मिनट, ये जो है सो पैसा खर्चा किया गया, मगर पैसा कम पड़ गया। जितना वहां पर खर्चा चाहिए उसमें पैसा कम पड़ गया। मैं माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसका जांच करा लीजिए कि कितना पैसा कम पड़ा और उसको दीजिए, क्योंकि बिहार से गरीब है। अब हमें विशेष राज्य का दर्जा देने का काम कीजिए ताकि हम उसको ठीक कर सके। अब हमारा है कि आप कब तक देते हैं, यह हमको आश्वासन दीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन 225। क्वेश्चन 225। हेलो माननीय सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 225 का विवरण पटल पर रख दिया। You ask the question, yes. All right, supplementary.
The request for the ESI hospital was for a 200-bedded hospital. The minister, will the minister be pleased to say why a 50-bedded hospital was started when prime land in the heart of Bhubaneswar was given for a 200-bedded hospital? Why 50-bedded hospital was started in the first place and is being upgraded now to 100 beds, creating now lot of crowding and congestion, and the workers the workers who are insured are not being looked after. क्यों 6-7 दोनों दे रहे हो अपने? माननीय सभापति महोदय, भुवनेश्वर में जो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल है वो 50 बेड का पहले से था। 50 बेड को 100 बेड में उन्नयन किया जाए, यह प्रस्ताव अनुमोदित हुआ था। माननीय सदस्य जिस 200 बेड के अस्पताल का जिक्र कर रहे हैं वह मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो 50 बिस्तर वाला अस्पताल है उसका उन्नयन करके उसको 100 बिस्तर का बनाया जा रहा है। उसके निर्माण की प्रक्रिया लगभग 70% पूरी हो गई है। मार्च 2015 तक वह पूरा हो जाए, यह हम लोगों का प्रयत्न है। Second supplementary. Sir, I only hope on the first supplementary, Honorable Minister would try to look at the old records, because I have personal knowledge that the request was made 2 decades ago for a 200-bedded hospital. On that basis, the land was given. So that may kindly be inquired. My second supplementary is that it is stated that all these surgery, medicine, gynecology, orthopedics, eye, all these specialists are there. They are all busy with private practice. Most of them are not available in the hospital. Hospital administration is in a mess. Workers who go, they keep on complaining about the very sad state of the hospital. And it's a pity that nobody goes. Will the minister please constitute a committee or send some high-level official from the center to go and have a look at that hospital, and please give an assurance that something will be done within a particular timeline and information will be made available. Thank you. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से निश्चित रूप से मुझे भी चिंता हुई। यदि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके कारण हमारे श्रमिक परेशान हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही गंभीर बात है और माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान दिलाया है। मैं इसके लिए अधिकारी नियुक्त करके वहाँ जांच भी कराऊंगा और जांच से सदस्य को अवगत भी कराऊंगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई विशेष और स्पेसिफिक शिकायत उनकी है तो वो मुझे जरूर लिख कर दें और हम उसकी पूरी जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू। श्री बासवराज पाटिल। मैं इस प्रकार के ईएसआई हॉस्पिटल बिल्डिंग तो बनते हैं, सफिशिएंट मात्रा में स्टाफ नहीं रहता है वहाँ के जगह के पकड़ के सब जगह, जिसके कारण पूरा सेवा नहीं होता है, फिर टाई अप करके बाहर इलाज के लिए भेजते हैं। इसके बदले में स्वयं सरकार भरोसा देगी क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में भी, केंद्र द्वारा संचालित अस्पतालों में भी और बाकी देश के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सीय और पराचिकित्सा स्टाफ का अभाव है और उसके कारण स्थान स्थान पर यह तकलीफ आती है। हम लोगों ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं उसमें स्टाफ पूरा आए, इसके लिए बार बार विज्ञापन दिए हैं, बार बार चयन की प्रक्रिया चलाई है और उसके कुछ परिणाम भी निकले हैं। लेकिन निश्चित रूप से चिकित्सीय स्टाफ की
अनुपलब्धता एक विशेष इस मामले का कारण है और इस वजह से यह सोचा गया है कि जो श्रमिक है अगर उस फैकल्टी का डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है और उसको चिकित्सा की आवश्यकता है तो श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, इसलिए निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को भी टाई अप किया गया है। लेकिन सरकार निरंतर इस बात का प्रयत्न करती रहती है कि हमारे यहाँ सारी फैकल्टी मौजूद हों और उसके लिए जो प्रयत्न किया जा सकता है वो निरंतर जारी रहते हैं। श्री शरद यादव। सभापति जी, तोमर साहब तो अभी नए आए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ESI जो अस्पताल है उसके बारे में जो एक सुविधा आपने सरकारी निजी अस्पतालों के लिए दी है, बड़ा भारी उसमें ऐसा भ्रष्टाचार है कि कोई इंतहा नहीं। फिर ये ESI की मकसद से जो हॉस्पिटल खोले गए हैं वो हर तरफ जिस हालत में है, अकेले आप उड़ीसा के हॉस्पिटल की बस समझिए, आपके नोएडा में एक आध बार दौरा कर लीजिए, इतनी बुरी हालत में है वो। और इस हालत खराब होने का कारण ये भी है कि जो निजी अस्पतालों में आपने जो सुविधा दी है वो एक कमाई का जरिया हो गया। अपना तो देश ही अद्भुत है, आपने सरकार ने अच्छी नीयत से जो काम किया था उसमें रास्ता निकाल लिया। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि इस मामले में आप पूरी तरह से सारे हॉस्पिटल्स का पूरे देश भर के लोगों को बुला करके इसमें क्या क्या कमी है और इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेबर मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी यही बड़ी भारी सुविधा है ESI वर्कर्स के लिए, इसको और लोगों के लिए खोलने का काम करेंगे, बाकी वर्कर्स के लिए काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी काम करेंगे, तो ये बड़ा भारी एसेट हो सकता है इस देश के जो मध्यम वर्गीय और छोटे आय वाले लोग हैं उनके लिए। माननीय शरद यादव जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका दीर्घकालिक आम लोगों के बीच में भी और संसदीय क्षेत्र में भी बड़ा अनुभव है और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ESI हॉस्पिटल के बारे में जो कुछ कहा है वो निश्चित रूप से विचारणीय है और मैं उस पर ध्यान दूंगा और कार्रवाई करूंगा। श्री बैशरफ परिदा। ESI hospital in Bhubaneswar is situated in the coastal area of Odisha. But in Odisha, most of the industries and mining areas belongs to the western Odisha. There is a long time demand that some ESI hospital should be established in the western part of Odisha, which would meet the growing demands of the employees and the workers. So is there any plan of the government to establish another hospital in western Odisha somewhere near to the industrial areas? Thank you. माननीय सभापति जी, जो सदस्य ने बात उठाई है वो अपनी जगह उनको आवश्यकता दिखती होगी, लेकिन ESI हॉस्पिटल की स्थापना के कुछ मानक बने हुए हैं और जिस पश्चिमी क्षेत्र का उन्होंने ध्यान दिलाया है उस क्षेत्र में भी अस्पताल भी हैं, औषधालय भी हैं और केंद्र के द्वारा संचालित जो बड़ा अस्पताल IPS के लिए होना चाहिए वह भी है। क्वेश्चन 226। माननीय सभापति जी, मैं 226 नंबर का प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। The statement is laid on the table of the House. माननीय सभापति जी, इस प्रश्न के संबंध में जो विशेषकर विदेश के 10 देशों के साथ कंपैरेटिव जानकारी दी गई है उससे एक प्रकार को मन को तसल्ली मिलने पर भी बाकी की जो जानकारी दी गई है, अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल लॉ, निर्भया प्रोजेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये सारी जानकारियों के साथ साथ मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि हमारी स्थिति इस प्रकार के अपराधों से और बच जाए, इस दिशा में मीडिया है, पेपर है और सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले गंदे पोस्टर है
अन्य प्रकार के इन प्रचार माध्यमों के बारे में क्या कभी सोची है या सोचा है तो उसके बारे में कोई क्रम लिया है? एक तरफ बिगड़ने के लिए रास्ता खुला करके दूसरी तरफ कानून करने से क्या होगा, इस दिशा में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। चेयरमैन सर, जैसे उत्तर में हमने विवरण दिया है, भारत का स्थिति इतना खराब नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सिस्टम में। 2013 के बाद जो डिटेल्स हमारे सामने में जो आए हैं, नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस अगेंस्ट वुमेन, रेप हो या मर्डर हो या थेफ्ट हो, इसमें इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस जो है वो ईजी कर दिया गया है। इसके बावजूद भी जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि अवेयरनेस के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन समय समय पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के इसका विवरण लेता है, रिपोर्ट लेते हैं और कुछ एडवाइजरी भी हम समय समय से देते हैं। और अवेयरनेस के लिए भी प्रावधान हम लोगों का यहाँ में है, जो कि राज्यों के अफसरों से बातचीत करने के बाद क्या क्या अवेयरनेस कर सकते हैं, जरूरी होने पर इसका भी करने का प्रावधान है। दूसरा प्रश्न। एक तो मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर बोलना चाहते हैं आप? कुछ मंत्री जी बोल। हाँ, संबंधित मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा, ये आवश्यकता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए और एक परसेप्शनल चेंज लाया जाना चाहिए। वैल्यूज़ के प्रति, जो लाइफ वैल्यूज़ होती हैं, उनके प्रति लोगों का कमिटमेंट बढ़े, ताकि वल्गैरिटी को बढ़ावा न मिल सके। और माननीय सदस्य ने जो चिंता की है, उस पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सके। इसलिए एक यह भी प्रस्ताव है कि जो टेक्स्ट बुक है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके कंटेंट्स में भी कुछ इस प्रकार के परिवर्तन लाए जाए, ताकि वैल्यूज क्या होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज, लाइफ वैल्यूज क्या होती हैं, उसकी जानकारी भी बच्चों को हो सके। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति जी, फिर मैं एक बार पूछना चाहता हूं, मीडिया, टीवी, रेडियो, पत्रिका या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जितनी बड़ी मात्रा में गंदे चीजों को दिखाई जाती है, दूसरे तरफ कैसे रोका जाए? साथ ही साथ ये भी है कि हम राज्य सरकारों के ऊपर थोप कर अपनी देश की मर्यादा के जिम्मेदारी से हम हट नहीं सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार का जो घटनाएं चलते हैं, मीडिया में आता है, दुनिया में अन्य देशों से ज्यादा मान बिकता है, इसको रोकने के दृष्टि से फिर एक बार मैं ये चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे और मीडिया इत्यादि माध्यमों पर अपनी रोल के बारे में स्पष्ट करे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मैं समझता हूं कि किसी को उपदेश देने से उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह सेल्फ रेगुलेशन के कुछ प्रोविजंस पहले से ही हैं, और मैं समझता हूं कि संबंधित विभाग समय समय पर कुछ ऐसे एडवाइजरी के कदम उठाता रहता है। ये माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी निश्चित रूप से होगी। लेकिन जहां तक महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है, मैं माननीय सभापति महोदय मैं ये बतलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, इनकी कई धाराओं में परिवर्तन भी हम लोगों ने किया है, और साथ ही साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी ये सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है। उसके अतिरिक्त कुछ सिस्टम्स भी हम लोगों ने डेवलप किए हैं, ताकि उसके कारण भी लोगों के अंदर भय पैदा हो सके। और यदि किसी महिला, यदि कहीं पर उसके साथ कोई छेड़खानी होती है अथवा किसी प्रकार का यदि कोई हैरेसमेंट होता है, तो एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और उसके अतिरिक्त ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी है। और इन दोनों के सहयोग से एक कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम भी हम लोगों ने इवॉल्व किया है, कि मोबाइल का कोई बटन जिस समय वह दबाए, तो इस सिस्टम के माध्यम से यह पता लग सके कि जिस स्थान पर महिला के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है कि अरे भाई, मैं सुन लीजिए पूरी बात।
ये सवाल किसी और का था। डॉक्टर संजय सिंह, नहीं आपका सवाल नहीं उनका। क्वेश्चन आवर इज ओवर। क्वेश्चन आर ओवर। Papers to be laid on the table, Shri Rajnath Singh. श्री राजनाथ सिंह। उप सभापति महोदय, मेरे नाम के आगे जो उल्लिखित विषय है उसको मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री नरेंद्र सिंह तोमर। उप सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 23 जुलाई 2014 की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। श्री श्रीपाद यसो नाइक। Sir, I beg to lay the papers on the table of the House mention against my name at serial number 3 of today's revised list of business. श्री धर्मेंद्र प्रधान। उपसभापति महोदय, आज के कार्य की सूची में आपकी अनुमति से मैं क्रमांक संख्या 4 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित कागजात सदन पटल पर रखना चाहता हूं। श्री किरण रिजिजू। Chairman sir, I beg to lay on the table of the House the papers as mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. No zero or mention much. Shri Derek O'Brien. Derek. No sit down. Sir, I am lucky the Home Minister is here. Derek O'Brien. Sit down. अरे रिजू जी, 3 मिनट तो बैठ जाओ। डेरिक ओब्रायन, 3 मिनट सुनते जाओ। आदेश में टेक देयर सीट। मैं टेक नो आई हैव कॉल्ड डेरिक ओब्रायन। यस क्या? I will allow you. Wait. What is your problem? आप लोग you alone say what is your problem? No. What is your problem? No. After 0 hour. एक सेकंड No, Mr. Ansari. Mr. Ansari. ये देखिए इंडियन No. Don't show it. No. I call. I am not allowing that. महाराष्ट्र No. No, please, no, not allowed. Not allowed. Not allowed. You sit down. I am not hearing anything. I can't hear. कि वो महाराष्ट्र फूड उनको नहीं सप्लाई कर रहे हैं इसके आरोप में वहाँ की जो महोदय Derek O'Brien, I called. Call me for 0 Okay, hour. after 0 hour I will allow you. After disposing of all this, पहले 0 hour लेने दो, पहले 0 hour लेने दो। आप बैठिए। पूरी बात हमको काले दी जाए। महोदय, हमारी मांग है सुनिए FIR होना चाहिए, ये मामला FIR होना चाहिए और नहीं तो पूरे देश में इसका बहुत गलत संदेश जाएगा, पूरी दुनिया में इसका गलत संदेश जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए महोदय। पहले 0 hour लेने दो, उसके बाद में अवसर देगा। पहले 0 hour लेने दो। Admitted 0. Let me do 0 hour first. I will allow you. लेकिन ये महाराष्ट्र सदन का मामला बेहद गंभीर है, सब धर्मों के खिलाफ है, हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। किसी की भी पूजा पद्धति में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कड़ी कार्रवाई की जाए शिवसेना के सांसदों के ऊपर जिन्होंने इस तरह की हिंदू धर्म के विरुद्ध भी काम किया। इन्होंने ठीक नहीं है इनका शिवसेना के सांसदों का। Now please. Please. No, Ansari. I see. बैठिए। आप सुनिए।
आप सुनिए, I'm sorry, let me do this first. ये पहले करने दो. No, don't show it. Not permitted. That is against the rule. ये पहले करने दो. बैठिए, बैठिए. पहले 0 ओवर करने दो. पहले 0 ओवर पहले. आप लोग, why your problem? बैठिए, बैठिए. Now, Sri Derek O'Brien, आप लोग बैठिए. Please. Please wait, please. Sri Derek O'Brien. Yes, sir. 0 over. Sri Derek O'Brien. No. I have allowed 0 over. Let me finish it after this. Let me finish this. Now, sir, you say now. Sir, I called him. I can't do that. I have to allow permitted 0 over. Let me first have permitted 0 over. Mr. Dood, it is unfair. Sit down. Atwale बैठिए. Sit down. बैठिए. You go to your seat. You go to your seat. What happened to you? What happened to you? Now, see, honorable members, अब जरा सुनिए. Sir, yes. See, let me dispose of the 0 over matches permitted by the chairman. Let me dispose of that. You allow that? No, I have the list. Then I will call him after this. You have first on this. Okay. After disposing, I will allow him. Let me dispose of this first. Then if you want, I will call him. But let me dispose of this. My dear, please go back. No, I have, yes. Let me finish it. After disposing, I will call you. Let me dispose. Then I will call you. Let me dispose this. I will call you after this. Please. I will give you a chance to go to your seat. I will give. Please go back to your seat. Your name is here. Your name is here. It is here. I am calling you. I will call you. Please go back. Please go back. Please go back to your seats. Please go back to your seats. No. After disposing this, I will call you. I will allow you, but let me do this. House is adjourned for 10 minutes.